भाई माँ बाप के पैरों में दुनिया होती है, माँ बाप के पैरों में चप्पल होती है। आई सेड इट हियर फर्स्ट, रिमेंबर दैट ऑलवेज। गुड इवनिंग एवरीबडी, अ हैप्पी होली एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड दिस चैनल वेयर आई टेल यू कि क्यों तुम्हारे पेरेंट्स एक नोबडी है और क्यों तुम भी उनकी तरह एक नोबडी रह जाओगे अगर तुमने भी एक्शन नहीं लिया तो। पेरेंट्स हैव अचीव्ड नथिंग एंड यू आर अबाउट टू रिपीट दैट। योर पेरेंट्स आर नॉट योर डेस्टिनी। ये मेरा एक ओपिनियन है पर्सनल। पहले बात करते हैं हु एक्चुअली इज अ पेरेंट। We need to stop glorifying our parents and start seeing them for what they actually are. A parent is just a normal individual, exactly like you and me. We will become parents someday too. There is nothing inherently wise or exceptional about a person simply because they had a child. काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात बोली है मैंने. And if you are average, and I am average, मैं हूँ, I'm average, I'm a nobody, I'm an average guy, then 1 plus 1 is equal to 2. An average individual becomes an average parent. How true is that? तुम खुद बताओ, क्या मेरे पैरों में दुनिया है? मेरे पैर, आई कांट शो यू माई पैर राइट नाउ, बट क्या मेरे पैरों में तुम्हें लगा मेरे पैरों में दुनिया है? मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का फ्यूचर बाप हूँ. आई एम गोना बी अ फादर समडे, यू नो. I'm really gonna be a father someday. And in fact, I have millions of my descendants and kids floating around in my balls. So I am literally a father and मेरे पैरों में दुनिया है. So shut the fuck up and listen to me, cause मेरे पैरों में दुनिया है. So you gotta listen to me, okay? And like कर देना please. मेरे पैरों में दुनिया है. सो द बेयर मिनिमम वी सेलिब्रेट. और ये तो सबसे बड़ा ट्रैप है. मैंने हर किसी को देखा हूँ, माय गॉड. और कितना देखा है मैंने होते, मतलब तुम या तो अपना दिमाग नहीं यूज करते हो या फिर तो मैं भी बेवकूफ हूँ या पता नहीं क्या है. बट स्टिक विद मी फॉर अ while. The bare minimum we celebrate. In India, we glorify our parents for putting a roof over our heads and food on the table. And that is the bare minimum. They brought you into the world. They brought you into this world. That makes it their responsibility, not their achievement. Not their achievement, responsibility, because they brought you into the world. And if you want a clearer picture of where the average Indian parent actually stands, look at India's per capita income. That number is not built by the exceptional. It is built by ordinary, struggling people making ordinary livings. That is the average parent. That is the dream they are handing you. Go ask your parent about their parents. In most cases, on average, you will get your answer about what the cycle actually looks like. We just never call it out. We defend it instead. तुम्हें पता है बैड पेरेंटिंग क्या होती है? क्या पता तुम्हारी ना हो, क्या पता तुम बहुत ही ग्रेटफुल और बहुत ही फॉर्चुनेट हाउस होल्ड से आते हो, बट गो एंड आस्क योर पेरेंट्स अबाउट देयर पेरेंट्स और मे बी देयर ग्रैंड पेरेंट्स. तुम्हें पता लगेगा कि बैड पेरेंटिंग क्या होती है. तुम्हें लगता होगा तुम लोगों ने इतना ग्लोरीफाई कर रखा है कि भाई पेरेंट्स इतना सब कुछ करते हैं, मेरे घर पे छत है, मेरे कमरे में एसी है, मेरे टेबल पे खाना है. वी नीड टू स्टॉप ग्लोरीफाइंग द बेयर मिनिमम. वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग कि वी ओ आर पेरेंट्स समथिंग ऑल बिकॉज उन्होंने हमारे छत पे एक रूफ दे रखी है या फिर खाने के लिए टेबल पे खाना दे रखा है. बिकॉज दैट इज लिटरली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज उन्होंने तुम्हें पैदा करा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू. एंड फॉर द पॉइंट आई वॉज मेकिंग रिगार्डिंग बैड पेरेंटिंग, अपेरेंटली जो मेरे फादर हैं और जो उनके फादर थे, he was such an irresponsible guy. That guy, even he might have loved me so much, but he was such an irresponsible, such an underachiever. My dadaji, he literally had a young girl, and by young girl I mean 30, 31, 35 years of age, and he did not care to marry that girl. He was out there enjoying his life. That is the kind of irresponsible guy he was. My father, he's a very responsible guy if compared to my grandfather. He was a no, and such bad parenting, such household violence during his time. Oh my god, they were so, कैसे बताऊं मैं, rotted mindset, एकदम rotted individuals, being rotted parents, bad parenting. तुम्हारी अगर तुम 60-70 साल के हो, तुम्हारी 30-35 साल की लड़की, तुम शादी नहीं करोगे पहले. My father had to wed his sister because my grandfather died. He just died. And this is, I'm quoting something very personal, but I'm trying to show you what bad parenting is. There are literally bad parents out there. अभी के टाइम पे दे माइट बी लेस, बट बहुत ही प्रोमिनेंट था. एंड उस टाइम पर तो ये और कॉमन सेंटिमेंट था अपने दिल में कि माँ बाप के पैरों में दुनिया है. आज के टाइम पे तो फिर भी मेरे ऐसे लोग और बहुत सारे जो कि ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं हर एक चीज को कि नहीं ऐसा क्यों, माँ बाप के पैरों में दुनिया नहीं, माँ बाप के पैरों में चप्पल है. देर आर पीपल लाइक यू एंड मी जो कि बोल देते हैं ये बात, बट उस टाइम पर तो बहुत कॉमन सेंटिमेंट था कि नहीं पेरेंट्स सब कुछ है. और ठीक है, पेरेंट्स आर फैमिली एंड विल कम टू दैट लेटर, बट celebrating this bare minimum, saying ki oh my god I'm so grateful, yeah you should be grateful because there are people out there sleeping on a road, on a footpath, and you have a house. But just having, you know what, I'll get to it later because abhi na main bahut out of context chala jaunga. Next one, the projection. An average person grows up, makes a peace with a mediocre life, has kids,
and then places everything they never became onto those kids. The unfulfilled dream, the unfinished ambitions, the deep, quiet shame of being a nobody. All of it gets handed to you, wrapped in love, and called sacrifice. And because it comes from people you love, you never question it, you just carry it. आई एम एन इंडिविजुअल एंड मैं बताऊँ क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ. आई एम समवन जो कि ना हर मंगलवार को मंदिर जाता है. फॉर रेफरेंस मेरी कास्ट, आई एम अ ब्राह्मण, मैं गोत्रिस भारद्वाज. एंड एवरी ट्यूसडे मैं मंदिर जाता हूँ. एंड उसके बाद भी समवेयर इन माई हार्ट आई क्वेश्चन माई रिलीजन. मैं उसको पब्लिकली नहीं करता बट मैं अपने दिल में क्वेश्चन करता हूँ. मैं भगवान को, भगवान की एग्जिस्टेंस को. एंड आई आस्क माई सेल्फ दीज थिंग्स. एंड हमारे यहाँ पे ना भगवान और पेरेंट्स आई गेस इनको बराबर ही रखा आता है. हमारे यहाँ पे दो कल्ट है. एक तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस का, उनसे तुम पंगा नहीं ले सकते, उनके बारे में उल्टा नहीं बोल सकते. दूसरा भगवान के बारे में. आई फील पेरेंट्स भी कहीं उसी भगवान के उसमें लाई करता है. कॉज पेरेंट्स, कौन कौन मानता है पेरेंट्स के पैरों में दुनिया है? मैं मानता हूँ. मैंने लाइक करा है वो कमेंट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आई पर्सनली क्वेश्चन इट एंड यू शुड ऑल्सो. तुम्हें देखना चाहिए. तुम्हें छोड़ो, आई कम टू इट लेटर. लेट्स मूव ऑन विद दीज थिंग्स. ओके, what this has to do with UPSC and IIT. This is where the race comes from. This is where that race comes from for most people. Not from a genuine passion for civil services or engineering, from a parent who never broke the cycle and is hoping you will do it for them. You do not owe your parents a career. They would have built that life. You do not owe your parents a career. They would have built that life themselves if they truly wanted it. Stop telling yourself you're doing it for them. You're doing it because you were never given permission to want something else. What you actually owe. You do not owe your parent your life's direction, but you do owe something to the generation that comes after you. Your parents are not the future, your kids are. The only way this cycle of average ends is if someone in it decides to stop running the same race and starts building something worth inheriting. That someone has to be you, not for your parents, for whoever comes next. अब इसके बाद तुम्हें इतना सुन करके पढ़ के लग रहा होगा कि ये तो भाई पेरेंट्स के अगेंस्ट है, तो कट्टर है, तो पेरेंट्स को हेट करता है, तो गलत वैल्यूज प्रमोट कर रहा है. दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और तुम्हें वो दिख जाएगा व्हेन आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑन फैमिली. नन ऑफ दिस मीन्स अबैंडन योर पेरेंट्स. फैमिली इज फैमिली. पेरेंट्स, सिबलिंग, ऑल ऑफ इट. You live with them and for them in the ways that matter. But there is a difference between loving your family and living according to them. If you hand your entire life over to someone else's vision of it, even someone you love, you will spend the second half of your life in regret. Your parents will die someday. You will mourn for them deeply and honestly. And then you will wake up one morning with the rest of your life in front of you. And the only question that will matter is whether you actually lived it. Stand up to them. If they love you, they will understand. And if they don't, do it anyway. Family will still be family on the other side of that conversation. The cycle ends with you or it doesn't end at all. Alright, let me get rid of this cause we really need to talk here. देखो होता क्या है, and I am not here necessarily blaming the kids or even the parents, but जो हमारे thoughts होते हैं, जो हमारे goals, ambitions और everything about us is somewhere influenced by our environment. और हमारा major environment किसके साथ, किसके बीच में निकलता है, किसके बीच में होता है? हमारे पेरेंट्स के बीच में, हमारे फ्रेंड्स के बीच में, एंड तुम्हारे फ्रेंड्स के भी पेरेंट्स, तो उनके भी उनके पेरेंट्स के बीच में. तो हम सारे एक क्लोजली निटेड सोसाइटी उसमें रह रहे हैं, जहां पर अगर एक दो लोग कुछ बड़ा बन जाए, कुछ बड़ा कर ले तो गुड फॉर देम. बट अगर नहीं कर पाते हैं तो वो चीज पास ऑन होती है, पास ऑन होती है तुम पे, पास ऑन होती है मुझ पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे आइडियाज पे, हमारे ड्रीम्स पे. सबसे बड़ी बात है कि हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें कभी बचपन से इंडिया में स्पेसिफिकली क्वेश्चन करना सिखाया ही नहीं गया. हमें बताया ही नहीं गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या होती है, और रीजन और क्यूरियोसिटी को ना यहाँ पे एम्ब्रेस नहीं करा जाता है. टीचर तुम्हें कहने को तुम्हारी बचपन में कह देगी कि मुझसे 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगी. पर 5वीं बार के बाद ही टीचर किलस जाएगी और बोलेगी बेवकूफ है क्या, इतना भी नहीं दिमाग है तेरे पास. सो हमारे यहाँ पे क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करते नहीं है जिस तरीके से करना चाहिए. कहने के लिए हम विश्वगुरु हैं, कहने के लिए तो वी हैव, ओ माय गॉड, कहने के लिए तो हमारे पेरेंट्स के पैरों में दुनिया है, लेकिन हमें दुनिया का इतना ज्ञान है नहीं. और हमसे अगर हम उस ज्ञान को पाने की कोशिश करें, अगर हम क्वेश्चन पूछे, अगर हम वाई पूछे, तो हमें चुप करा दिया जाता है बोल करके कि तू बेवकूफ है, तेरा दिमाग नहीं है क्या, ऐसे बोल करके तुम्हें शट डाउन कर दिया जाता है. हमारे यहाँ पे हम पेरेंट्स को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि वो कोई हायर और सुपीरियर बीइंग्स हैं, और कि पेरेंट्स कभी
गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बताएंगे। देखो पेरेंट्स तुम्हारा गलत नहीं चाहेंगे एंड आई एम विद यू ऑन दैट पॉइंट, लेकिन क्या पेरेंट्स में बता भी नहीं सकते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि पेरेंट्स को ही खुद नहीं आइडिया है अभी इस टाइम पर, नॉट रियली इस टाइम पर, बैक इन 2022 23, इनफैक्ट 2024 एज वेल, I get, I'm talking about e-cigarettes, vape. These were a very big and a very common and a very prominent issue in the youngsters, specifically people of your and mine age. हम तो छोटे हमसे बड़े, एंड इसके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं था। यू नो हमारे पेरेंट्स इतने भोले होते हैं, द थिंग इज कि पेरेंट्स इतने भोले होते हैं, उन्हें नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, एंड दे डोंट नो एनीथिंग। स्टॉप बिलीविंग कि पेरेंट्स को मालूम है, उनको नहीं पता। दे डोंट नो बेटर। इफ यू फील योर पेरेंट्स नो बेटर, दे डोंट। अपने पेरेंट्स को उनको पता है वेप क्या होता है, क्या उन्हें पता आई गेट क्या होता है? डू दे हैव एनी आइडिया कि जो तुम्हारे दोस्त हैं वो किस टाइप के नशे कर रहे हैं आज के टाइम पे? उनको नहीं पता है वो बात। तो हाउ कैन दे टेल यू टू नॉट डू दैट? वो तुम्हें एक मोटा आइडिया दे देंगे कि नशे मत करो, कल भाई नशे करना खराब होता है। दैट इज ऑल दे कैन से। दे कांट टेल यू कि कौन से नशे नहीं करने। कोई भी नशे मत करो। मैं कोई नशा प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि पेरेंट को कितनी कमी होती है आजकल के उसकी, मतलब पेरेंट को कितनी कमी भी नहीं, पेरेंट्स कितने अनअवेयर होते हैं कि चल क्या रहा है हमारे आसपास, और उनकी एज हो गई होती है। अपेरेंटली तुम और मैं, हमें क्यूरियस एज ग्रुप में आते हैं जहां पर हम अभी भी मेमोरी से इतने फ्रेश है कि हम नई चीजें लर्न कर सकते हैं, हम अडाप्ट कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट द केस विद आवर पेरेंट्स। उनकी एक ग्रोथ प्लेट, जो बोलते हैं ग्रोथ प्लेट ग्रोथ प्लेट, उनकी एक लिमिट टच हो चुकी है, और वहां पर उनके लिए कोई भी नई बात को ग्रास्प कर पाना, कुछ भी नया अपने मतलब अडाप्ट कर पाना नई चीजों को लेकर के, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है वो। एंड वो हमेशा वही वो ट्रेडिशनल रास्ते प्रीच करते रहेंगे। देखो आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज पेरेंट एंड एन एवरेज पर्सन राइट नाउ। आई एम नॉट टॉकिंग टू द मासेस एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू द टॉप 1%। सो डोंट कम टू मी विद दिस आर्गुमेंट कि हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं करते, हमारे पेरेंट्स तो, तुम्हारा पेरेंट भाई तुम निखिल कामत के लड़के हो गए भाई, ठीक है, तुम निखिल कामत के, वो मेरी, दैट इज नॉट माई कंसर्न, दैट इज नॉट माई थिंग, ओके? वो दैट इज आई वन मिलियन में एक हो तुम फिर। तो डोंट कम टू मी विद दैट आर्गुमेंट कि मेरे पेरेंट बहुत अच्छे, ठीक है भाई तुम्हारे होंगे अच्छे, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि तुम और मैं भी कल को फ्यूचर में पेरेंट्स बनेंगे, और अगर शायद से आज तुम कुछ ना अचीव कर पाओ, और अगर तुम एक लो आईक्यू इंडिविजुअल हो, तो कल को तुम अपने बच्चों पे यही सेम मैसेज प्रीच करोगे जो तुम्हारे पेरेंट ने तुम पे प्रीच करा, और जो पाथ तुम्हें फॉलो करने के लिए फोर्स करा गया, तुम कल को किसी और को उस पाथ में डालोगे, और उससे क्या होगा? तुम खुद तो अचीव कर नहीं पाए वो पाथ, और तुमने अपनी बाकी की लाइफ जी ये सोच के कि यार तुमने रिग्रेट में जी कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पाया, मैंने लाइफ वेस्ट कर दी, और उसके बाद बाकी की लाइफ तुम किसी और की लाइफ खराब करने में लगा दोगे कि तू भी इस पाथ पे जा, और ये साइकिल चलती रही चलती रही चलती चलती रहेगी। अपने आप को देखो, तुम्हारे पेरेंट्स अब, ऑल्दो I'm not blaming the parents here. I think हमारे parents they tried the best with everything they had. Just like you and me, हमें नहीं पता ना कि the very next hour हम क्या कर रहे होंगे, या फिर if you are confused about your career and the path you are supposed to choose, अगर तुमने अपना passion और interest discover नहीं करा है, तो you might not really know, और तुम बहुत skeptical हो कि यार if I'm gonna do something next that might work, that might not work, तुम बहुत doubt में होगे उस बात को लेकर के। And so are our parents, cause end of the day वो भी तुम्हारी मेरी तरह इंसान है, and they tried their best, जो उनसे हो पाया उन्होंने करा। And I am very grateful for this roof over my head and for the food on my plate. I literally have food on my plate. So I'm very grateful for that. And I'm very grateful for that. All I'm trying to say is कि stop following your parents' advice for a career. तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम एक अलग इंसान हो, तुम एक अलग एंटिटी हो जो हर चीज से अलग है। तुम हो। यू नीड नॉट सेटल फॉर लेस। स्टॉप लिसनिंग टू योर पेरेंट्स कि तुम्हें एक्स्ट्रा करना चाहिए। गो एंड फिगर आउट थिंग्स फॉर योर सेल्फ, बिकॉज वो तुम्हें बता ही नहीं सकते कि they have not kept up to date with the changes that have happened in the career market. They don't know कितनी नई करियर अपॉर्चुनिटीज है। मेजोरिटी पेरेंट्स को पता भी नहीं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। मैं नहीं बोल रहा क्रिप्टो करेंसी एक करियर ऑप्शन है, आई एम जस्ट सेइंग कि उनको पता भी नहीं कि वो होती क्या है, क्रिप्टो क्या होता है। मेजोरिटी पेरेंट्स तो म्यूचुअल फंड में भी नहीं इन्वेस्ट करते हैं। मेजोरिटी कह रहा हूँ, एवरेज, एवरेज इज द वर्ड, एवरेज इज द की वर्ड हेयर। तो stop following your parents' advice. Stop asking your parents for advice on what to do. How to do is a different thing कि मेहनत एंड ऑल ठीक है, उसके बारे में लेसन्स ले लेने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली डिपेंडिंग ऑन देम एंड फॉलोइंग द पाथ दे सेट फॉर यू। व्हाट आर यू, अ 5 year old? तुम्हें स्पून फीड करा हुआ पाथ चाहिए करियर का भी? कांट यू फिगर थिंग्स आउट ऑन योर सेल्फ? अगर तुम खुद नहीं फिगर आउट तो फिर तुम क्या बताओगे अपने बच्चों को? हैव यू एवर सीन दोज टॉपर जो कि एयर रैंक लेकर के आते हैं? हैव यू सीन देम? कभी तुमने देखा उनको? हाउ दिस इज, मतलब मैं उनकी सेलिब्रेशन नहीं उड़ रहा, बट हैव यू रियली सीन देम? दे आर डिवॉइड ऑफ ऑल पर्सनैलिटी, दे आर डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन और एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड दिखता है कितने सोललेस बच्चे हैं बेचारे। मतलब आई काइंड ऑफ फील पिटी फॉर देम। एंड
आई हैव सीन दिस पीपल इन रियल लाइफ एज वेल, वो बिल्कुल मुंह छोटा करके ऐसे करके बैठे होते हैं एंड यहाँ वहाँ देखते भी नहीं है, एंड I kind of feel sad for them, but that's on them. Apparently, उन्होंने जो चीज़ क्लियर करी है, a good career path is set for them, but for you and me running in the same rat race as them, and then figuring out कि oh we were never meant for this and wasting so much time of our life, ताकि बाद में फिर इस क्राइसिस में बैठ पाए कि oh my god लाइफ पूरी वेस्ट कर दी। एंड होता क्या है कि आज तुम कहने के लिए अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए उनकी बात से हाँ में हाँ मिला दोगे, अग्री कर लोगे, लेकिन फ्यूचर डाउन द लाइन रियलिटी है, पेरेंट्स इमॉर्टल तो है नहीं, समडे दे माइट डाई, एंड द डे दे डाई तुम कुछ टाइम के लिए उनको लेकर के सैड रहोगे, पर एक दिन तुम उठोगे और जिस पेरेंट को लेकर तुम सैड थे ना, तुम उस पेरेंट को बैठ के गलियाओगे कि यार अपने पेरेंट्स चक्कर में मैंने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी इनके बोलने पे, बिकॉज तुम्हें, तुम बहुत लंबे टाइम तक नहीं भाग सकते हो अपनी कैपेबिलिटी अपने पोटेंशियल से। हाँ तुम आज कोप कर ले रहे हो, हाँ तुम आज नजरें घुमा ले रहे हो कि तुम्हें नहीं देखना है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम किस चीज के कैपेबल हो, लेकिन दैट इज नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। अ डे वुड कम तो तुम्हें रियलाइज होगी कि तुम्हारी नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ थी, वट वर यू नेचुरली सपोज्ड एंड मेंट टू डू, एंड व्हेन दैट डे कम्स, दैट डे यू वुड, देर आर वेरी लेस पीपल जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि वट एवर हैपन टू मी वॉज बिकॉज ऑफ मी। तुम मोस्टली उस ब्लेम को प्रोजेक्ट करोगे ऑन टू योर पेरेंट्स, ऑन टू सोसाइटी, ऑन टू अदर थिंग्स, एंड दैट वुड लीड टू सैडनेस एंड ग्रीफ एंड बहुत एक फ्रस्ट्रेशन जो कि तुम्हें मेंटली बहुत हार्म करेगी और बहुत प्रॉब्लम्स दे सकते हो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी। एंड एंड ऑफ द डे फैमिली फैमिली होती है, नो मैटर व्हाट, फैमिली तो फैमिली हमेशा रहेगी, तुम्हारी बहन रहेगी, तुम्हारा भाई रहेगा, मम्मी तुम्हारी मम्मी रहेगी, पापा तुम्हारे पापा रहेंगे, तो फैमिली विल ऑलवेज रिमेन फैमिली। तुम कितने भी कुछ भी ऐसा स्टेप लो जो हमारे पेरेंट्स को पसंद ना आए या पसंद आ भी जाए, दे वुड स्टिल बी योर फैमिली एंड दे वुड स्टिल लव यू। आई हैव सीन पीपल fuck up so bad in their life कि पेरेंट्स तो बिल्कुल अगेंस्ट थे बट दे स्टिल डिड दैट थिंग, एंड आई डाउट कि, मैंने पर्सनली अपने से ज्यादा स्ट्रिक्ट वो तो नहीं देखा। आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स, मैंने अपने साथ टॉक्सिक देखे जरूर है पेरेंट, बट अपने साथ ना वो स्ट्रिक्ट माहौल मैंने कहीं नहीं देखा। बट मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारे वो भी देखे फिर एक्सेप्शंस, और कैसे फैमिली हमेशा फैमिली है, फैमिली खड़ी रहती है हमेशा तुम्हारे पास, तो यू नीड नॉट बी स्केर्ड कि मैं इनके अगेंस्ट कैसे चलो, चले जाओ अगेंस्ट, कुछ नहीं होता इतना, यू आर वे टू मच इन टू योर हेड, यू टू स्टेप आउट अ बिट, दे वोंट रियलाइज इट, और वो उस भोलेपन के चक्कर में तुम्हें बैक होल्ड करते रह जाएंगे, और तुम उन्हें खुश रखने के चक्कर में, उनके भोलेपन को बढ़ावा देने के चक्कर में तुम पीछे रह जाओगे हमेशा, और तुम कभी वो पहला स्टेप फॉरवर्ड नहीं लोगे जो जरूरी है अगर तुम्हें कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ खुद का बिल्ड करना है जहाँ पे तुम खुद से सेटिस्फाइड हो। यू नीड टू रियली सिट एंड टॉक टू योर पेरेंट्स कि मैं 5,000 कमा के कॉल सेंटर की नौकरी करके भी खुश रह लूंगा, बट करूंगा तो यही काम, एंड आई एम नॉट गोना गिव दिस सरकारी पेपर यू आर आस्किंग मी टू डू, एंड आई एम नॉट गोना अपीयर फॉर दिस आईआईटी एग्जाम दैट यू आर आस्किंग मी टू डू। यू नीड टू बी मोर ओपन विद देम। मे भी पिटाई बढ़ जाएगी, मे भी गालियां बढ़ जाएंगी, बट एंड ऑफ द डे इट इज यू, और तुम्हें तुम्हारी लाइफ खुद जीनी है, पेरेंट्स पूरी जिंदगी भर का तुम्हारा ठेका लेकर के नहीं बैठने वाले हैं। यू नीड टू बी मोर ओपन अबाउट इट, एंड if you're scared of anything, they will always be your family. I'm not asking you to abandon your parents, I'm asking you to abandon their ideologies, make an ideology of yourself, थॉट्स अपने खुद बनाओ, जो थॉट्स तुम बचपन से लेके अब तक बड़े हुए हो अपने माँ बाप के सोसाइटी के, उसको छोड़ो एंड खुद डिस्कवर करो चीजें, खुद सही और गलत में डिफरेंस क्रिएट करो। जस्ट बिकॉज पेरेंट्स बोल रहे आईआईटी सही डज नॉट मीन आईआईटी सही है, सेट हो क्या तुम बने हो, डू यू रियली लाइक स्टडिंग दोस सब्जेक्ट्स। आई डोंट थिंक आई कैन टच ऑन दिस कॉन्सेप्ट मोर डीपली, कॉज एंड ऑफ द डे हमें हमारे अंदर ना कल्चरली बहुत ये इन्फ्यूज्ड है, हमारे जीन्स और डीएनए में इन्फ्यूज्ड है कि माँ बाप के बारे में दुनिया होती है। तो आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस आर रेडी फॉर दिस कॉन्वर्जेशन एज वेल कि एक पेरेंट इज जस्ट अ नॉर्मल इंडिविजुअल हु इज ट्राइंग टू द बेस्ट दे कैन with their abilities and with the resources they have, and they can also make mistake and they can also be losers. People don't want to accept कि parents are losers, they did everything for you, but come on, like we are not ready for this argument right now. But what I'm trying to tell you is, don't abandon your parents and don't abandon your family, लेकिन break this cycle as soon as possible। जो टॉक्सिक साइकिल है दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, कि जब तुम कुछ अचीव नहीं कर पाए तो तुम उसको प्रोजेक्ट करते हो अपने बच्चे पे कि वो अचीव करके देगा, दैट इज नॉट द केस। एक बच्चा तुम्हें कुछ ओन नहीं करता है, तुम बच्चे को ओ करते हो बिकॉज तुमने उसको पैदा करा, बट बच्चा तुम्हें कुछ भी ओन नहीं करता है। एक बच्चा अपने आगे आने वाले बच्चों को चीजें ओ करता है, तुम्हें नहीं ओ करता है। एंड दिस इज अ वेरी हार्ड पिल टू swallow, बट जितना जल्दी इसको तुम swallow कर लोगे उतना ज़्यादा लाइफ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी होती जाएगी। दैट इज फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।